Dear student, welcome back to the next lecture. We are going to start the next unit, pricing of transmission network usage and market power. As its name indicated that we will calculate it, we will understand the concept of the pricing of जो transmission network power flow के लिए we are using in this unit we will discuss it. As we all know that one of the basic prerequisites of establishing a competitive market is the transmission open access. जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि बेसिक जो प्रीरिक्वेस्टिंग कम्पिटिटिव मार्केट को क्रिएट करने के लिए कंडीशन है दैट इज द ट्रांसमिशन ओपन एक्सेस. ट्रांसमिशन ओपन एक्सेस का मीनिंग क्या है कि देयर इज मल्टीपल जनरेटर और मल्टीपल वायर. इफ देयर इज ए सिंगल ट्रांसमिशन नेटवर्क, इफ दे आर यूजिंग both the transmission both the generator is the same network, or the both the seller using the same network, they will pay for it. That is called the open access. It will be both the seller, both the generator can use the system. That is called the system concept of the open access. Successful competition at the generation level calls for a successful, fair and non-discriminatory open access for the transiting entity in the market. Pricing of transmission services play an important role in determining whether providing transmission open access and allied service is economically beneficial to both the willing utility and willing customers. जो प्राइसिंग है ट्रांसमिशन सर्विस की वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये ट्रांसमिशन ओपन एक्सेस है और उसकी एलाइड सर्विस है वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है बहुत दी व्हीलिंग यूटिलिटी के लिए और व्हीलिंग कस्टमर्स के लिए. द वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी यूज टू सेल देयर पावर इनसाइड देयर टेरिटरी. जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जो पावर सेल की जाती थी inside the territory or exchange power with the neighboring utilities. Hence, the need for having a formal mechanism for pricing of transmission does not exist. वहाँ इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था. The cost incurred by the vertically integrated utility were required by the embedding them in the electrical price bill to the consumers. और जो ट्रांसमिशन नेटवर्क की कॉस्ट थी वो किससे प्राइसेस लेते थे, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे करते थे उसके अंदर उसको एम्बेडेड कर देते थे. However, in the recent time, as a primary step toward reform, generation and transmission business have been separated for each other in many countries, and transmission prices are used to charge the transaction. जनरली सारे लगभग सभी कंट्रीज के अंदर जो डीरेगुलेटेड सिस्टम है वहाँ जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सारे बिजनेस अलग अलग हो गए हैं. वहाँ पर इस ट्रांसमिशन प्राइसेस को वी विल चार्ज इट. टू सम एक्सटेंट ट्रांसमिशन प्राइसिंग कपल्स ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द पावर सिस्टम विद इट so long as provision of correct economic signal is considered. Engine analysis, which deals with mainly with determining the feasibility and the cost of providing transmission service, is only one of the many considerations in the overall process of pricing transmission services. इसके अंदर सबसे पहले we will discuss the power wheeling. The wheeling is the transmission of electrical energy from buyer to a seller through a transmission or distribution line owned by a third party. Assume कीजिए कि दो जनरेटर हैं. There is single a transmission network. There are two wires. If they are using the same transmission network, this generator or this buyer can use this third party network, or both the generator, both the seller have to pay for using this network. That is called the power of wheeling or wheeling charges. The another concept which is the power is flowed is displacement or movement. It is a popular argument that power does not actually move from injecting point to load point. ये rather, displacement of power takes place by addition and withdrawal of some of power at the injecting and take off point respectively. ये पॉपुलर आर्गूमेंट है कि पावर डज नॉट एक्चुअली मूव फ्रॉम, जो पावर है वो इंजेक्टिंग पॉइंट से लोड पॉइंट की तरफ
फ्लो नहीं होती है, मूव नहीं करती है, रादर देन इसके बजाय डिस्प्लेसमेंट होता है पावर का प्लेस बाय एडिशन। या तो हम कुछ मेगावाट एडिशन कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं सब मेगावाट का एट इंजेक्टिंग एंड टेक अ पॉइंट रेस्पेक्टिवली। One analogy given by proponent of this concept is that of a lake that is filled to its maximum capacity। मान लीजिए कि एक लेक है जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी तक फिल्ड है। pouring water at one end of a lake make an equivalent amount of flow at the other end। अगर उसके अंदर अगर हम कुछ पानी डालते हैं तो जितना पानी डाला वो एक एंड से लेके दूसरे एंड की ओर फ्लो करेगा। However, the poured water does not travel from one end to the other. The electricity pushed into a power pool would also behave in a similar fashion. Thus, it is argued that the transmission user should pay a flat fee regardless of distance between two points। इसीलिए ये कहा गया कि जो ट्रांसमिशन में जो पावर फ्लो हो रही है उसके लिए we will we will charge for the transmission pricing। The opponent of this view state that suppose that X gallon of water is added at one end of the lake। कुछ जो रिसर्चर से अपोनेंट से उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए हमने X गैलन वाटर उस लेक के अंदर वन एंड पर ऐड किया। इट मीन नॉट ट्रेवल ऑल द वे टू अदर एंड। ये ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे एंड की तरफ सारा का सारा पानी जाएगा, बट इट कॉजेज इंक्रीमेंटल डिस्टर्बेंस इन एवरी गैलन इन द लेक। वो जो एक्स गैलन हमने जो वाटर ऐड किया है वो क्या करेगा, कुछ डिस्टर्बेंस करेगा एवरी गैलन इन द लेक। सिमिलरली पुशिंग सम मेगावाट एंड वन पॉइंट एंड विड्रॉइंग फ्रॉम द अदर एंड वुड क्रिएट एन इक्विवेलेंट टोटल चेंज इन द सिस्टम फ्लो। इसी तरह सम कुछ मेगावाट अगर हम एक एंड पर या विड्रॉ करते हैं दूसरे एंड पर, एक create a equivalent total change in the system flow। Hence, the user should pay as if its power had been moved over this much distance। तो इसीलिए जो कस्टमर है या जनरेटर है जो पावर में डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके लिए उसे पे करना चाहिए। डिस्टेंस डिपेंडेंसी है या नहीं है इस पावर जो ट्रांसमिशन प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज हाई और लो। वन ऑफ द डिबेटिंग पॉइंट इज हाउ मच ट्रांसमिशन डिलीवरी प्राइस वुड डिपेंड ऑन डिस्टेंस। कि एक सबसे डिबेटिंग पॉइंट है कि ट्रांसमिशन डिलीवरी एक प्राइस है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है नहीं करती है। दिस क्वेश्चन डिड नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी एज ऑल जनरेशन एज वेल एज लोड्स वर लुक्ड। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी के अंदर जो सभी जनरेशन और लोड्स थे आर आफ्टर ए सिंगल looked after a single utility, एक यूटिलिटी की तरह देखे जाते थे। in this case neither a load near generating station got advantage nor the distant load held the want of their location। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर तीनों पार्ट एक ही जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों नेटवर्क एक ही साथ एज्यूम एक ही बिजनेस थे, तो वहाँ पर वो कि कोई डिस्टेंस लोड दूर है या पास है इसका कोई एडवांटेज नहीं कंसिडर किया जाता था। बट इन ए डीरेगुलेटेड एरा द वायर हैव द चॉइस टू चूज देयर जनरेटर एज लोकल और डिस्टेंस प्रोड्यूसर। लेकिन डीरेगुलेटेड सिस्टम के अंदर जो वायर है उसके पास चॉइस होती है कि वो जनरेटर लोकल जनरेटर को चूज कर ले या कोई डिस्टेंट प्रोड्यूसर है उसको भी चूज कर सकता है। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। तब ये क्वेश्चन उठता है that the customer should pay toward transmission using on the basis of the resistance। However, the counter argument to this that why should a customer be penalized for its geographical location। फिर एक कि जो कस्टमर है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए क्यों पेनलाइज किया है, विच इज नॉट इट्स हैंड, जो कि उसके हाथ में नहीं है। Thus, one aspect of this distance parameter is the fairness। The other aspect is the generation of the price signal। From the economic viewpoint, low price as a function of distance create a competitive market। और अगर इकोनॉमिस्ट के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो लो प्राइस होती है वो इट विल फंक्शन ऑफ ए डिस्टेंस क्रिएट ए कम्पिटिटिव मार्केट। एक कम्पिटिटिव मार्केट जनरेट करती है विच इज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर डीरेगुलेशन, जो कि
डीरेगुलेशन के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। ऑन द अदर एंड, हाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन चार्जेस वुड एनकरेज construction of local generation so as to discourage long distance transmission of power leading of loss reduction। अगर हम लोग हाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन चार्जेस लेते हैं तो क्या करेगा वो, लोकल जनरेशन को एनकरेज करेगा और इससे क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन से जो होने वाले लॉसेज हैं उसमें कमी आएगी। इन अदर वर्ड्स, हाई डिपेंडेंसी ऑफ प्राइस ऑन डिस्टेंस वुड लीड टू इंजीनियरिंग एफिशिएंसी। इसीलिए अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि हाई डिपेंडेंसी ऑफ प्राइस, तो प्राइस की डिपेंडेंसी ऑन डिस्टेंस वुड लीड टू इंजीनियरिंग एफिशिएंसी, उसको हम कह सकते हैं कि इट इज द इकोनॉमिकल aspect। In spite of having different opinion on the debatable issues, one thing is agreed upon by everybody, that is the charges of transmission system used should cover all the cost and provide a small regulated level of profit for the owner of the transmission facility। ये सारे डिस्कशन के बाद एक चीज पर सभी लोग वी कैन एग्री हैं कि ये जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो सारे ट्रांसमिशन नेटवर्क की कॉस्ट को कवर करे, और कुछ, और इट विल प्रोवाइड ए स्मॉल रेगुलेटेड लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर द ओनर ऑफ द ट्रांसमिशन फैसिलिटी, और जो उसके ओनर को कुछ प्रॉफिट ट्रांसमिशन फैसिलिटी का मिले। इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss the pricing of transmission pricing। Thank you।